मुंबई का पहला अस्पताल ग्लेनईगल्स अस्पताल को मिला वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन और नव एडवांस्ड स्ट्रोक सेंटर सर्टिफिकेशन। परेल स्थित ग्लेनईगल्स अस्पताल ने न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। यह मुंबई का पहला अस्पताल बन गया है जिसे वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन WSO और नव द्वारा एडवांस्ड स्ट्रोक सेंटर सर्टिफिकेशन मिला है। ये सर्टिफिकेशन अस्पताल की स्ट्रोक मरीजों के लिए तेज और सही इलाज की क्षमता, आधुनिक सुविधाओं, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और बेहतर इलाज के परिणामों को देखते हुए दिया गया है। इस मान्यता के लिए अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर, इमरजेंसी सिस्टम, इलाज की प्रक्रिया और मरीजों की रिकवरी का गहराई से मूल्यांकन किया गया। So basically, when you want to deliver an advanced stroke care, the most important thing is availability of experienced team members. So right from the ER till the thrombectomy, what we do on the state-of-the-art cath lab, it is AI integrated state-of-the-art cath lab, but more important is neuroimaging also. So MRI based protocol does help us to give comprehensive advanced stroke care, timely advanced stroke care, because time is of essence in delivering good outcomes in any acute stroke patient. So these patients who come to us within the first window period of 24 hours, we activate the code stroke. And to assess the timing of onset of stroke, many a times we take help of the MRI. Certain MRI characteristics tell us that the stroke is older than 24 hours or it is hyperacute. It has occurred just in few seconds or few minutes back. So if that stroke patients we start treatment, trust me, believe me, it is a miraculous treatment, either thrombolysis or thrombectomy. That patient goes home back without any deficit, and you will not even identify that patient has had a stroke. So that is the advantage of advanced technology, imaging, as well as our cath lab, which helps us to give timely treatment. First is early diagnosis and initiate timely treatment. So how does the common man understand that this is a stroke, and what are the first steps that he has to take? Does he order or call for a cardiac ambulance, and how quickly it is available? Is it possible for him to just bring it in a Uber or cab or something? Could you just throw some light on that? Yeah, so it is extremely important, and in fact one of the main reasons that why we have these sessions and awareness in stroke is very important is that the person sitting at home and his family, the person, if he is able to, or his family, they should immediately call the hospital, and while choosing a hospital you should choose directly an advanced stroke center, okay? And that you will choose, if you choose that center rather than going to a smaller place which is not capable of handling the acute stroke situation, time is lost, and so there is no time to waste. You must reach an advanced stroke center like Gleneagles or any other wherever you live. But reaching a stroke center, which is that is why the importance of these certifications, etc. Because now that center is trained, is sort of geared to handle these patients in a very time-sensitive fashion. So you should call the hospital immediately, call for an ambulance, and just reach the ambulance of the nearest stroke center. And that is your best chance of saving your life, your limbs, your speech, your face. That's what you should do. So you wanted to say something? Yeah, so I wanted to just say that when it comes to technology, it's not only in-house, but Dr. Dange can elaborate on it. We've also developed something called as hub and spoke model when it comes to advanced stroke care. Of course, it is not part of the certification as such, but it is an extended thing that we've actually offered to society at large, where we've tied up with a lot of diagnostic centers and small nursing homes in the periphery, where if the patient reaches there, and if you are able to get the CT scan or an MRI done, okay, we can actually get the diagnosis and wheeling the patient or start the treatment there only, okay, and the expert advice is being given by Gleneagles from here. Would you like to elaborate on that? Yes. So basically this is an artificial intelligence enabled protocol wherein we have a software which is installed in the hub and spoke model. The spokes, hub is Gleneagles Hospital and the spokes are the diagnostic centers, wherein a CT or MRI is done of a stroke patient. Your questions were very valid, very important, very practical. Which patients need to be transferred to the stroke center or for diagnosis?
One is the symptoms of be fast, losing balance acutely, eye signs that the diplopia, the sudden loss of vision in one or both eyes, or face becomes asymmetric, arm becomes weak, or there is difficulty in speaking. These are the symptoms which are of acute, either one or combined symptoms. If somebody notices, these patients need to do a neuroimaging. It is very, very important not to start any treatment at home or give aspirin, which can be very dangerous sometimes in hemorrhagic stroke. So these patients first need to be diagnosed or go to a CT scan or MRI center, because stroke has to be diagnosed by only neuroimaging. Now, this is of the brain. Now, once you do this, now these are the centers which are in the periphery. Not all patients will come directly to Gleneagles with a symptom of stroke. So they will go to nearby center diagnostic where we are collaborating, and this is an AI-based software which notifies us. Suppose night 8 in 1 o'clock or 2 o'clock, a CT scan is done of a stroke patient in Ghatkopar. Now that center is tied up with us. The imaging, the CT scan machine itself, the console notifies us through this AI-enabled software that the patient is having stroke, whether it is a hemorrhagic stroke or a ischemic stroke, and we get notification on our mobiles. We are activated. Now what we do, we have made one more facility available, that our Gleneagles ambulance goes to pick up these patients from the dedicated our hub and spoke model diagnostic centers, and we get these patients to Gleneagles so that we don't waste time and start treatment at the earliest. So this is AI enabled diagnosis, helps us to identify stroke patients in the periphery, and then our infrastructure is available which can help these stroke patients in the society to time sensitive treatment, and that's why World Stroke Organization was very happy to certify us as one of the advanced stroke care center. And we are expanding to 10 centers, because 10 centers I think so is more than enough to have patients 24/7 and get them for treatment. One is diagnosis, starting faster treatment, and then getting them for mechanical thrombectomy, because we have a state-of-the-art cath lab in our institute. Just one point I wanted to make. We look at our stroke patients every 3 months, and we see that our quality is maintained. So as we were discussing, it's not just a question of patients coming to us. It's also a question of maintaining our own quality. मतलब हम हमारी क्वालिटी हर 3 महीने में देखते हैं कि भाई पेशेंट का डोर टू इमेजिंग टाइम क्या है, डोर टू नीडल टाइम क्या है, डोर टू ग्रॉइन टाइम क्या है, डॉक्टर ने उसको टाइम में देखा कि नहीं, और उसका ट्रीटमेंट बराबर हुआ कि नहीं, आउटकम क्या हुआ, ये हर 3 महीने में हम रिव्यू करते हैं। और हर 3 महीने में हमारा स्ट्रोक का मीटिंग रहता है, कोड स्ट्रोक मीटिंग, तो उसमें रिव्यू करते हैं। और WHO NABH हमको हर 2 साल में ये परीक्षा में से फिर से लेके जाने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि आज हमने पास कर दी परीक्षा इसलिए हम परमानेंटली एक्सेलेंट हो गए, नहीं, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्वालिटी इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। और हमारा ये इस पे भर है कि हॉस्पिटल अच्छा होना चाहिए, मतलब the key issue is that the hospital quality should keep on rising, क्योंकि quality is a continuous process, वो कभी कभी completely achieve होती नहीं है, but we are continuously in this process। हम देखते हैं कि हमारा डोर टू इमेजिंग टाइम 20 मिनट्स के नीचे हो, हमारा इमेजिंग टाइम 10 मिनट्स के नीचे हो, हमारा डोर टू नीडल टाइम 60 मिनट्स अभी 45 मिनट्स के नीचे हो, पर इसके लिए हमको कंटिन्यूसली स्ट्राइव करना पड़ता है। और तो ये हमारा क्वालिटी केयर का जो है, ये आपके लिए प्रॉमिस है कि ग्लेनईगल्स आपको, और WSL ने इसको सर्टिफाई किया कि ये प्रॉमिस सही है, मतलब ये प्रॉमिस, क्योंकि प्रॉमिस तो सभी लोग करते हैं, लेकिन देयर मस्ट बी अ इंटरनेशनल बॉडी सर्टिफाइड, एंड देन ऑफ कोर्स NABH, दोनों ने सर्टिफाई किया है। और WHO के बारे में मैं बता देता हूँ कि 2006 में WHO सेटअप हुआ है, और WHO जो है वो WHO के साथ अफिलिएटेड है। इट इज द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड फॉर ग्लोबल स्ट्रोक, और इसका आइडिया है कि ट्रीटमेंट प्रिवेंशन का कंप्लीट अवेयरनेस होना चाहिए इस दुनिया में। और 12 मिलियन पीपल सफर फ्रॉम स्ट्रोक्स एवरी ईयर, 12 मिलियन, मतलब आधी बम्बई की
पॉपुलेशन स्ट्रोक होती है in 1 year. So just imagine कि previous strokes को अगर combine कर दिया जाए तो millions of people are having stroke. And तो इसका awareness जो है वो WHO कर रहा है. और मैं again फक्र के साथ कहता हूँ कि WHO का president जो है वो Indian है, डॉक्टर जयराज पंडियन हमारे दोस्त ही हैं, and he has been a prime driver of stroke in India. And Indian Stroke Association जो है वो भी एक बड़ी association है जिसमें about 1000 neurologists है, और ये एसोसिएशन भी स्ट्रोक के लिए करती है. तो WHO, इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन, NABH, ये बड़े ऑर्गेनाइजेशंस है फॉर स्ट्रोक इन इंडिया. एंड हम चाहते हैं कि आप स्ट्रोक के बारे में अवेयरनेस कराइए, पेशेंट्स को अवेयर कीजिए कि सही सेंटर में जाइए. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट नर्सिंग होम में जाता है पहले और 24 घंटे के बाद हमारे पास आता है और फिर कहता है डॉक्टर साहब आपने ठीक क्यों नहीं किया. सो आई थिंक ये बड़ी अहमियत रखता है कि पेशेंट शुड नॉट गो to a wrong center, should go to a proper center, or proper center में of course we are the advanced stroke center first in Mumbai. So we look forward that other quality work also comes through. It's not just our hospital which is important. I think ultimately अपना life patient centric है. As doctors हम चाहते हैं कि patient अच्छे हों, बाकी तो ठीक है. जिनको ब्रेन हेमरेज का शुरुआत होता है और तभी ऐसे ब्लॉकेज के स्ट्रोक के सिम्टम्स होते हैं, राइट साइड वीकनेस, लेफ्ट साइड वीकनेस, स्पीच में प्रॉब्लम, और वो ब्लीडिंग चालू रहता है. और कोई गलत तरीके से उनको अगर ब्लड थिनर देंगे तो बड़ा क्लॉट हो जाता है जिसमें जान जा सकती है. तर तेच मला डॉक्टर तुम्हाला विचारायचं होतं की अशा वेळेला एथिकली राईट आहे का हे It डॉक्टरने is इंजेक्शन देणं? not recommended, it is contraindicated. That's why I said initially की आपण हे करू शकत नाही. न्यूरो इमेजिंग केल्याशिवाय, डायग्नोसिस केल्याशिवाय ट्रीटमेंट स्ट्रोकची होऊ शकत नाही. त्यासाठी आयदर सीटी स्कॅन, बेसिक और MRI. जिकडे MRI नाही आहे तिथे सीटी स्कॅन तर But कुठेही after होतं. giving that injection, blood thinner, We the can- patient can come to your hospital and it will be recovered. But we should not promote giving blood thinners or injection without a CT scan. Basic. It is contraindicated. It is unscientific. We have seen patients, doctors, one general practitioner came to us who was given because he started having tingling, numbness and one-sided little symptoms and face, and we did a CT scan. He was given aspirin 300 milligram on the way and he had a bleed. So it increased. He needed surgery. Luckily he survived. But he had a developed because it increases the bleed. It is harmful. So it is not recommended by the guidelines to give any treatment at home or on the way unless you confirm by brain MRI or CT scan. तुम्ही जे बोलता ना ते हिपॅरिन बद्दल आहे. बरेचसे नर्सिंग होम्स अशा पेशंटला ऍडमिट करून देतात आणि त्यांना हिपॅरिन देतात. बरे इमेजिंग करतात पण त्यांना हिपॅरिन देतात आणि हिपॅरिन इज नॉट द ट्रीटमेंट फॉर स्ट्रोक. अँड इनफॅक्ट 25 वर्षापूर्वी ट्रायल्स होते हिपॅरिनचे and they have shown that you can't treat stroke with heparin. You can prevent the next stroke, but you can't treat that stroke. And in fact, as Dr. Dange correctly said, की त्याच्यामध्ये bleed होतं आणि bleed मुळे patients deteriorate. So heparin is completely contraindicated as treatment of stroke. पण बरेचसे nursing homes हे करतात. It's unfortunate की they low molecular weight heparin देतात अशा patients आणि असं दाखवतात जसं की आपण त्यांना ट्रीट करतोय, ते स्ट्रोकला ट्रीट करतोय. But this is not the treatment of the stroke, and in fact it can produce bleeds in the stroke. The correct treatment of stroke is, as we said, thrombolysis, म्हणजे clot bursting, किंवा mechanical clot retrieval, किंवा neurosurgery. But heparin is not the treatment of stroke. आणि ते काही patients बद्दल म्हणजे काही त्यांना inform नाही करत, which is sad, but I think you have to create awareness. Heparin is not the treatment of the stroke that has happened. It can be the prevention of the next stroke, but it's not the treatment. That's important. एक पॉइंट है कि दिस क्वेश्चन ऑफन अराइजेस, ये कई बार सवाल पूछते हैं और ये हार्ट के जो सिचुएशन है उससे कंफ्यूजन होता है. हार्ट में पेन होगा तो एंजाइना के लिए वो गोली लेते हैं, तो गोली ले लो और फिर डॉक्टर. ब्रेन में ऐसा नहीं है. अगर ब्रेन से रिलेटेड सिम्टम्स हैं, वो बी फास्ट के सिम्टम्स है, चेहरा या हाथ या कुछ वीक हो गया, सडनली बोल नहीं पा रहे, अगर ब्रेन रिलेटेड सिम्टम्स है तो कोई गोली आप नहीं ले सकते.
आपको कोई भी गोली लेनी नहीं है। हार्ट के लिए ठीक है, गोली नहीं लेना है, हॉस्पिटल पहुंच के स्कैन करना है, फिर ही कौन सा गोली देना हम भी नहीं बता सकते। कई बार पेशेंट को देख के, सामने हमारे पेशेंट है, हम गोली नहीं देंगे एंटीप्लेटलेट, क्योंकि अगर वो ब्लीडिंग हो गया तो क्या उल्टा हो जाएगा। सो इसीलिए खुद गोली घर पे नहीं लेना है। ब्रेन के सिम्टम्स अगर अक्यूटली हो, घर पे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेना है। डॉक्टर से भी बिना फोटो निकाले ब्रेन का कोई ट्रीटमेंट नहीं एक्सेप्ट करना है। इसमें टाइम सेंसिटिव बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइम का, जब मरीज अगर पहले 4-5 घंटे में आए, जैसे मैंने बोला, तो वो नॉर्मल 2-3 दिन में वापस जा सकता है। उसको बड़ा स्ट्रोक भी हो, अगर वो विंडो पीरियड 3-4 घंटे में आए, हम उसको थ्रोम्बोलाइसिस करें, फिर मैकेनिकल क्लॉट रिट्रीवल करें। ये टाइम सेंसिटिव ट्रीटमेंट है। जैसे हमने बहुत बार अनुभव किया है कि 3-4 घंटे में अगर पेशेंट आए हैं तो टेबल पे वो इम्प्रूव होते हैं। जैसे हम क्लॉट निकालते हैं, उनका ताकत बढ़ता है, बात करना शुरू कर देते हैं। जैसे क्लॉट हम निकालते हैं तो वो बात करना शुरू कर दे। इतना रिवॉर्डिंग ट्रीटमेंट है इसका, थ्रोम्बोलाइसिस का भी और मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी। बट अगर डिलेड आ गया तो तब तक वो पेशी डैमेज होते हैं, कई सारे पेशी डैमेज होते हैं, कई बचे हुए रहते हैं, तो फंक्शन चला जाता है। फिर टाइम ज्यादा लगेगा, रिहैबिलिटेशन लगेगा, फिर इम्प्रूव हो जाते हैं। बट ट्रीटमेंट देने से ये गाइडलाइंस के हिसाब से और एक्सपीरियंस से, अभी स्ट्रोक के ऊपर 25 ईयर्स से नया टेक्नोलॉजी आया है, उसमें ये पता चला है कि मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी और थ्रोम्बोलाइसिस जरूर हेल्प करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ में। जरूर, मतलब वो बियॉन्ड प्रूफ है कि उसको वो इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। सो ट्रीटमेंट देना टाइमली बहुत ही जरूरी है। तो कितने दिनों में अप्रोक्सीमेटली, 1 हफ्ते में, 10 दिन में? सो अगर डेफिसिट ज्यादा नहीं है, मेजर स्ट्रोक नहीं है, तो 1 हफ्ते 15 दिन के अंदर मरीज काम पे जा सकते हैं। बट अगर डिलेड आ गया, मेजर स्ट्रोक है, ब्लॉकेज है, और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और ऑफकोर्स नेचर भी है, कभी कभी कोलैटरल्स शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ से ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है नेचर, तो उसमें डेफिसिट्स कम रहते हैं, जल्दी रिकवरी होती है। तो इसके बाद उसको किस चीज का ख्याल रखना चाहिए डाइट के ऊपर? प्रिवेंशन के बारे में आपने प्रश्न जो पूछा वो भी इम्पोर्टेंट है कि प्रिवेंशन ऐसा है कि हम पक्का करते हैं कि क्यों हुआ ये स्ट्रोक। क्योंकि कई बार मेरे को पेशेंट्स पूछते हैं कि भाई डॉक्टर साहब स्ट्रोक क्यों हुआ मेरे फादर को, ये आप बताइए क्यों हुआ। तो इसको बोलते हैं मैकेनिज्म और कॉजेशन ऑफ स्ट्रोक। तो क्या ये हार्ट में से क्लॉट्स गए ब्रेन में जिसकी वजह से स्ट्रोक हुआ, क्या उनकी आर्टरीज खराब है जिसकी वजह से स्ट्रोक हुआ, या क्या उनका खून खराब है जिसकी वजह से स्ट्रोक हुआ। तो इसका जो है डायग्नोसिस हमको करना जरूरी रहता है। तो 2D इको करते हैं हार्ट का कि भाई हार्ट में क्लॉट्स है कि नहीं, एंजियोग्राफी करते हैं, हम डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी करते हैं डॉक्टर डांगे के साथ कि भाई यहाँ पे बीमारी है क्या, यहाँ बीमारी है तो हम स्टेंट डाल सकते हैं और नेक्स्ट स्ट्रोक प्रिवेंट कर सकते हैं। अब हमको ये समझाना बहुत जरूरी रहता है कि ये इस स्ट्रोक का ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे हमने हेपेरिन के बारे में कहा, ये इस स्ट्रोक का ट्रीटमेंट नहीं, ये प्रिवेंशन है अगले स्ट्रोक का। तो इसके लिए हम फिर स्टेंट डालते हैं कि भाई अगले टाइम स्ट्रोक ना हो, या फिर हम ब्लड थिनर देते हैं, जैसे हेपेरिन दे सकते हैं, वॉरफेरिन दे सकते हैं, रिवरोक्साबैन करके दवा है। लेकिन इसके लिए हमको प्रिवेंशन के लिए एज फार एज पॉसिबल हमको पता होना चाहिए कि क्यों हुआ स्ट्रोक। ऑफ कोर्स 70% लोगों में समझ जाता है क्यों हुआ, 30% में फिर भी नहीं समझता। तो फिर हम टेस्टिंग आगे भी कर सकते हैं, जैसे होल्टर करते हैं पेशेंट्स का कि क्यों हुआ स्ट्रोक, और फिर उसकी दवा देते हैं, जैसे एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, आपने सुनी होगी ये नाम, और स्टैटिन्स, अलग अलग दवाइयाँ जो प्रिवेंट करते हैं स्ट्रोक। फिर उसके आगे ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे कि एक्सरसाइज एवरी डे, वॉक हाफ एन आवर एवरी डे, वो सब, और फूड डाइट, ऑफ कोर्स आपका डायबिटीज का कंट्रोल, क्योंकि आधे हमारे स्ट्रोक के पेशेंट्स नहीं 75% डायबिटिक रहते हैं, तो उनका शुगर का कंट्रोल, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, ये सब करके एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक केयर होती है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक केयर भी एडवांस स्ट्रोक सेंटर का मकसद है। तो हम कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक केयर भी करना चाहते हैं क्लिनिकल्स में, और हम करेंगे जरूर। सर, ये जेनेटिक प्रॉब्लम फोकस में आ रहा है जनरली ब्रेन की बीमारियों में, और ये सवाल आपने अच्छा पूछा है। ऐसे कई जीन्स होते हैं जो यंग एज में भी स्ट्रोक, बचपन में भी स्ट्रोक कर सकते हैं, 20 साल भी नहीं,
बट बच्चों में भी स्ट्रोक होता है, उसको पीडियाट्रिक स्ट्रोक बोलते हैं। तो जेनेटिक फैमिलीज में जैसे कई जीन्स होती हैं जो बॉडी में अलग अलग प्रोटीन्स को कंट्रोल करती हैं, और जैसे ब्लड वेसल में इन्फ्लेमेशन हो या कोई केमिकल्स ब्रेन ब्लड में बढ़ जाएं, और कई ऐसी बीमारियां हैं जो जेनेटिक्स होती है, बट लार्जली ये फैक्टर्स को आज तक इग्नोर किया गया है। और जो सबसे कॉमन फैक्टर्स हैं डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, स्मोकिंग, लैक ऑफ एक्टिविटी, फिजिकल इनएक्टिविटी एंड हार्ट डिजीज, तो ये सब पे बहुत ध्यान दिया है, और जो सही भी है, जो बहुत कॉमन है। लेकिन ऐसे जरूर यंग स्ट्रोक्स होते हैं, और यंग स्ट्रोक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे अभी भी हम भी देख रहे हैं कि कई यंग लोगों में 20 साल में, 30 साल में लार्ज वेसल ऑक्लूजन होता है। तो कई जेनेटिक फैक्टर्स हैं, काफ़ी नोन हैं और काफ़ी अननोन भी हैं, और इस पे स्टडी चलती है। लेकिन ये फैक्टर्स ज़रूर एक स्मॉल रोल प्ले करते हैं, और जो भी अप्रोप्रिएट सिचुएशन है, जो पेशेंट्स हम देखते हैं, अगर हमको लगता है कि अगर पॉसिबल है, इसके लिए कोई स्पेशल टेस्ट होते हैं जो सब में नहीं भेजते, लेकिन जो यंग पेशेंट है जिसमें और कोई रीजन मिल नहीं रहा है स्ट्रोक का, तो उनमें ये जेनेटिक फैक्टर्स के टेस्टिंग भी हम करते हैं।